اس کہانی کی شروعات میں ہم نورما اور اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے باہر صبح ایک ڈبہ رکھ کر گئی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا گاڑی والا آدمی تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ سسپینس کے بیچ یہ لوگ ڈبہ کھولتے ہیں اور اس سے ایک اور لال رنگ کا بٹن والا ڈبہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹورٹ شام 5 بجے ان سے ملنے آئیں گے۔ تب تک انہوں نے ڈبہ سائیڈ میں رکھ دیا اور اپنے روٹین کا کام شروع کر دیا۔ نورما ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ آج اسے پرنسپل کے آفس بلایا گیا جہاں پرنسپل نے اسے کہا کہ انہیں نورما کی تنخواہ میں کمی کرنی پڑے گی کیونکہ اسکول میں ایک بحران چل رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پرنسپل کے ناک سے خون نکل رہا تھا لیکن نورما نے اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی ہی پریشانی میں تھی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی جہاں شام کو مسٹر سٹورٹ اس سے ملنے آئے۔ اس کا آدھا چہرہ عجیب طریقے سے جل رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مسٹر سٹورٹ ہوں اور صبح میں نے وہ ڈبہ آپ کے گھر کے باہر چھوڑا تھا۔ نورما نے فوراً اسے اپنے گھر بلایا۔ مسٹر سٹورٹ بیٹھ کر نورما کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام ڈبہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ کو $1 ملین ملیں گے لیکن اس کے بدلے کسی انسان کی جان جائے گی جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ وہ نورما کو $100 اور ڈبے کی چابی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس شام تک کا وقت ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دباتی تو میں یہ ڈبہ آپ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نورما کے شوہر کو دیکھتے ہیں جو ناسا میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اسپیس جانے کے لیے ایک درخواست دی تھی لیکن انہیں بری خبر ملی کہ وہ اسپیس نہیں جا سکتے۔ حالانکہ انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کیے تھے لیکن وہ نفسیاتی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ غمگین ہو کر وہ گھر واپس آتے ہیں۔ نورما نے ان کے لیے نئی خبر لی تھی۔ نورما نے ڈبہ انہیں دیا اور مسٹر سٹورٹ کی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ اگر ہم یہ لال بٹن دباتے ہیں تو ہمیں $1 ملین ملیں گے لیکن اس کے بدلے کسی کی جان جائے گی۔ نورما سوچ رہی تھی کہ یہ دبائے یا نہ کرے لیکن نورما کو یہ نہیں لگا تھا کہ اس کے الفاظ کا سچ ہونا ممکن ہے، اس لیے اس نے مسٹر سٹورٹ کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا اور وہ بٹن دبا دیا۔ شام 5 بجے مسٹر سٹورٹ ان کے گھر آیا اور $1 ملین کی ایک بریف کیس دی جو دیکھ کر نورما کے شوہر کو صدمہ لگا۔ وہ یہ پیسہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً بریف کیس بند کی اور مسٹر سٹورٹ کو دینے کے لیے اس کے پیچھے گیا لیکن وہ اپنے کار کے ساتھ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ جانے سے پہلے مسٹر سٹورٹ نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کیا۔ سین کٹ ہونے کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا گیا کہ ایک اجنبی عورت کی موت ہو گئی تھی۔ جب پولیس نے اس کے گھر کی تحقیقات کی تو انہوں نے اس عورت کی بیٹی کو واش روم میں دیکھا جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے نورما کے والد وہاں گئے۔ نورما کے والد نے یہ جانا کہ جس نے اس عورت کا قتل کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ فلیش بیک میں صبح کا سین دکھایا گیا جب اس عورت نے اپنے شوہر کو اپنے گھر بلایا تو اس آدمی نے اسے ڈرا دیا اور کہا کہ اپنے گھر کی ساری کھڑکیاں بند کر لو۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ عورت مر گئی تھی اور اس کے شوہر اس میں شامل تھا۔ ویسے بھی کہانی پھر سے نورما کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ نورما اپنے والد کے گھر پارٹی کے لیے آئی۔ پارٹی میں رکھی گئی تحائف میں سے نورما کے شوہر نے وہی ڈبہ دیکھا جو ان کے گھر میں رکھا گیا تھا اور اس نے ڈبہ کھولا اور اندر مسٹر سٹورٹ کی تصویر دیکھی۔ اس پارٹی میں نورما کا ایک شاگرد کام کر رہا تھا۔ نورما کے شوہر نے نوٹس کیا کہ وہ بچہ ان کو گھوم کر دیکھ رہا تھا اور ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نورما کے شوہر نے نورما کے والد کے پاس جا کر مسٹر سٹورٹ کی گاڑی کا نمبر دیا اور ان سے درخواست کی کہ اس گاڑی کے بارے میں کچھ پتہ چلائیں۔ نورما کے والد نے یہ کام کرنے کا کہا لیکن اس کے باوجود نورما اور اس کے شوہر اس پارٹی میں بہت عجیب محسوس کرتے ہیں۔ انہیں چکر بھی آنے لگے تھے۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جب نورما ان سے بات کرتی تھی تو اس کی ناک سے خون بہنے لگتا تھا۔ انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر ان کی گاڑی پر نو ایگزٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ ڈر گئے۔ ویسے بھی وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو نینی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھی تھی وہ بھی سو رہی تھی۔ نورما اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ نورما کے شوہر سے پوچھتی ہے تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ نورما کے شوہر نے اس سے بچنے کی کوشش کی
हमें ये भी दिखाया गया कि जब ये लड़की नूरमा के शोहर से बात कर रही थी, इसका सर घूमने लगता है और इसके नाक से खून बहने लगता है। वो भी 1 सेकंड में बेहोश हो जाती है। जब नूरमा के शोहर ने इसकी आईडी चेक की तो इस पर दूसरा नाम लिखा हुआ था, यानी इस लड़की ने अपनी आईडी छुपाई हुई थी और इसने किसी साजिश के तहत ये लड़की इनके पास भेजी थी। जब वो होश में आई, नूरमा के शोहर ने कहा, अब सिर्फ एक शख्स तुम्हें बचा सकता है जो तुम्हें आईने में नजर आएगा। नूरमा का शोहर घर वापस आया और नूरमा को बताया कि लड़की हमारे साथ गलत आईडी के साथ रह रही थी और अजीब बातें कर रही थी। इसका सर घूम रहा था। यहाँ नूरमा का शोहर दूसरी लड़की की तस्वीर देखता है जो इसके शोहर ने 4:45 बजे मार डाली। ये सुनकर वो हैरान रह गया क्योंकि नूरमा ने सुरख बटन 4:45 बजे दबाया था। क्या वो इस बटन की वजह से मर गई? ये कैसे मुमकिन था? यहाँ हम नूरमा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ मॉल आई थी शॉपिंग के लिए। एक लड़की इनके पास आई और नूरमा से कहा कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं, जो लोग टेस्ट हो रहे हैं ये एक जोड़ा है और इनका बच्चा है। इसने नूरमा को कहा कि वो लाइब्रेरी चली जाए और इसे एक छोटा सा कागज दिया जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ नूरमा का शोहर भी नूरमा के वालिद के साथ मर्डर वाले मुकाम पर पहुंच गया था। वहाँ बहुत सी चीजें थी और नूरमा के शोहर ने एक तस्वीर देखी अस्टोर्ट की। जब इसने तस्वीर उठाई, इसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। इसने इस लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर पहचाना तो वो भी लाइब्रेरी गया और यहाँ दिखाया गया कि नूरमा भी लाइब्रेरी पहुंच गई थी। वो बुक शेल्फ और किताब का नंबर जो तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था। नूरमा के शोहर ने अखबार देखा जिसमें वो रिपोर्ट थी जिस दिन ये लोग मार्स पर पहुंचे थे। तमाम साइंसदान बहुत पुरजोश थे। अस्टोर्ट भी इनके साथ मार्स गया और जब वो तस्वीर ले रहा था इसे बहुत ज्यादा बिजली का झटका लगा जो इसके मुंह को जला गया। यहाँ नूरमा भी पहुंचती है लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से में एक रिकॉर्डिंग पर। जब इसने ये वीडियो रिकॉर्डर चलाया तो ये वीडियो भी इस वक्त की थी जब अस्टोर्ट और इसका पूरा ग्रुप मार्स जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इस वीडियो में अस्टोर्ट का चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। नूरमा ये वीडियो देख रही थी और अचानक से ऊपर जाने का दिल हुआ। जब वो ऊपर गई तो मिस्टर अस्टोर्ट इसके सामने खड़ा था और जब इसने इसका हाथ पकड़ा वो बेहोश हो गई। यहाँ नूरमा का शोहर जो कि किताब और अखबार लेकर जा रहा था, वहाँ बैठे सारे लोग इसकी तरफ देखने लगे। तब अस्टोर्ट की बीवी इसके सामने आई। इसने इससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसने कहा, अस्टोर्ट ने हम सबको कंट्रोल कर लिया है। नूरमा के शोहर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर अस्टोर्ट की बीवी इसे एक अजीब कमरे में ले गई और इसके सामने 3 पानी के पोर्टल खुल गए। इसने इससे कहा, यहाँ से निकलने के लिए इनमें से कोई एक रास्ता चुनो। हो सकता था कि इन पानी के पोर्टल्स में कुछ और हो। इसे याद आया कि नूरमा के वालिद की पार्टी में एक लड़का इसकी तरफ इशारा कर रहा था और इसे 2 नंबर्स बता रहा था। इस हिंट को याद करते हुए इसने दूसरा रास्ता चुना और जैसे ही इसने पानी को छुआ, पानी इसे अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ नूरमा बिस्तर पर बेहोश हो गई थी। जब इसने होश में आकर देखा तो इसने वही पानी का पोर्टल देखा। जब इसने पानी का पोर्टल छुआ, इसने बहुत सारा पानी देखा और इसका शोहर भी बिस्तर पर गिर गया। सीन कट हो जाता है। अब हमें 2 नए किरदार दिखाए जाते हैं। ये दोनों नासा के अथॉरिटी के लोग थे और वो अस्टोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब बिजली अस्टोर्ट के चेहरे पर गिरी, इस वक्त अस्टोर्ट मर चुका था। इसे मुर्दा करार दे दिया गया था और मुर्ग में डाल दिया गया था। लेकिन फिर इसकी हंसी सुनकर नर्स ने इसका कैबिन खोला और देखा कि अस्टोर्ट जिंदा था। इसके चेहरे के अलावा इसके जिस्म पर जितने भी जख्म थे वो ठीक हो चुके थे और तब से वो जिंदा है। अब इन लोगों में से एक अस्टोर्ट के पास जाता है और हम ये भी जान पाते हैं कि अस्टोर्ट बहुत सारी हुकूमती अदारों को संभाल रहा था। यहाँ अस्टोर्ट के पास बहुत सारा पैसा था और वो एक डिब्बे पर रखा था जिसे दबाने से कोई भी मर सकता था। इस आदमी ने अस्टोर्ट से पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? अस्टोर्ट ने कहा, मैं बस लोगों का इम्तिहान ले रहा हूँ। जैसे ही कोई भी इस बटन को दबाता है मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सारे लोग लालची हैं। ये तमाम लोग मेरे इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं
और ये बटन दबाते हैं और इसी वजह से मैं इन्हें मार डालता हूँ। सीन कट हो जाता है। हमें नूरमा और इसके खानदान को दिखाया जाता है जो किसी की शादी की पार्टी में आए थे। यहाँ नूरमा के शोहर को अचानक बीमारी हो जाती है और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। नूरमा की बेटी ने अपने वालिद को बाहर जाते हुए देखा। इसने अपने वालिद का पीछा किया और नूरमा अपने बेटे का पीछा करती है। हम देखते हैं कि नूरमा का बेटा अगवा हो जाता है और नूरमा बहुत खौफजदा हो जाती है। दूसरी तरफ जो आदमी शुरू में अपनी बीवी को मार चुका था, अब नूरमा के शोहर की तरफ पिस्तौल तानकर इन्हें गाड़ी में डाल रहा था। यहाँ ये आदमी नूरमा के शोहर को एस्टोर्ट के बारे में सच बताता है। वो एक बहुत गहरा खेल खेल रहा था जहाँ वो लोगों का इम्तिहान लेता है लालच की वजह से। लोग इसके दिए हुए बटन को दबाते हैं और जो भी बटन वो दबाता है एस्टोर्ट इसे मार डालता है अपने खानदान के जरिए। जैसे इसने मेरी बीवी को मेरे जरिए मारा। मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन इसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया और अपनी बीवी को मारना मेरी मजबूरी बन गई। इस दिन के बाद वो मुझे कंट्रोल करता रहा और जब भी वो मुझे कंट्रोल करता है मेरे नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानता है और ये सुपर पावर शायद इस हादसे की वजह से हो जो इसके साथ मार्स पर हुआ था। नूरमा के शोहर ने इससे पूछा कि वो इसका बेटा कहाँ ले गया। इसने बताया कि वो इसे किसी होटल ले गया होगा जहाँ एक खास पूल है जो पोर्टल की तरह काम करता है और वहाँ से वो लोगों को दूसरी जगह ले जाता है। वो होटल की तरफ जा रहे थे लेकिन फिर एक ट्रक इनको टकरा देता है। शायद ये भी एस्टोर्ट का मंसूबा था। हम देख सकते हैं कि वो आदमी जो नूरमा के शोहर को अगवा करके ले जा रहा था इसी जगह पर मर गया। लेकिन अब नूरमा के शोहर को फौज के जरिए नासा के हेडक्वार्टर ले जाया गया। यहाँ वो अपनी बीवी से मिलता है और इन्हें आसानी से इनके घर वापस भेज दिया जाता है इसी स्याह गाड़ी में जिससे लोग निकलते थे। यहाँ वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। तब एस्टोर्ट इनके पास आता है। नूरमा ने इससे पूछा कि इसका बेटा कहाँ है। एस्टोर्ट ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ बैठो। दर हकीकत मैं बहुत उम्मीद करता था कि तुम बटन नहीं दबाओगे और खेल यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी बटन दबाया। अभी तुम्हारा बेटा वॉशरूम में है। इस वक्त वो ना सुन सकता है और ना देख सकता है। एस्टोर्ट नूरमा के शोहर से कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा फिर से नॉर्मल हो जाए अपनी बीवी को मार डालो। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मेरे दिए हुए $1 मिलियन के साथ रहो। गुस्से में नूरमा के शोहर ने एस्टोर्ट पर पिस्तौल फेंका लेकिन एस्टोर्ट कहता है चाहे तुम मुझे मार दो, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का वह तरीका ये है कि तुम अपनी बीवी को मार दो। नूरमा बिल्कुल टूट चुकी थी। इसकी लालच ने इससे बहुत बड़ा नुकसान कराया था। वो अपने बेटे को इस हालत में पूरी जिंदगी नहीं देख सकती थी, इसीलिए इसने अपने शोहर से कहा कि वो इसे मार डाले। नूरमा के शोहर ने बेबसी में नूरमा को मार डाला। इसी वक्त एक अजनबी जोड़ा सुरख बटन को दबा रहा था। जब भी कोई सुरख बटन दबाता दूसरी तरफ कोई ना कोई मर जाता। ये दिखाया नहीं गया कि एस्टोर्ट ने इन तमाम चीजों को कैसे आपस में जोड़ा था, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया कि जैसे ही नूरमा मर जाती है इसका शोहर पुलिस के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और नूरमा का बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एस्टोर्ट कभी भी खेल को नहीं रोकता। इसने वही डिब्बा किसी दूसरे खानदान के घर के बाहर रख दिया और इस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।